So, hello students, welcome to Food Nutrition and Dietetics channel. So, before beginning, I would like to say that sorry for the delay in the videos, but from now it will be regular. So, we are continuing the unit 1 of Food Nutrition Basic Concepts. We will begin with today chapter 2. Okay, so let's begin. Life can be sustained only with adequate nourishment. Man needs food for growth, development, and lead to an active productivity and healthy life. The general composition of the food as well as the way in which the components are organized give a food its individual characteristics. Second, there are three main groups of constituent of food: carbohydrate, proteins and fats and derivatives of these. The above constituents occur in food naturally. So वही हमें बताया गया है कि फूड का जनरल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, और जैसे कि हमने पहले चैप्टर में देखा कि बेसिक फूड कंपोनेंट्स कौन से जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है. सो उसी के बारे में ये बताया जा रहा है. आगे दिया है फंक्शंस ऑफ फूड. If you want, you can take screenshot of this. So food is further classified into three types: social, physiological and psychological. Psychological is further divided into energy, body building, protection and regulation. जैसे कि हमने पीछे पहले चैप्टर में भी देखा था, अब उसी का डिटेल इसमें चैप्टर में हम पढ़ेंगे. So let's see. Nutrients are essential constituent of food that must be supplied in the body in suitable amounts. There are about 40 essential nutrients which are placed in 5 categories. These are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. The nature, food sources of each one are given as follow. तो वही बता रहे हैं कि न्यूट्रिएंट आर एसेंशियल, और हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स कैसे एसेंशियल हैं, और मेजरली 40 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के क्लासीफाई किया गया है, वो नीचे हम देखेंगे. सो लेट्स सी. पहला है कार्बोहाइड्रेट्स. Carbohydrates are organic compounds essentially made of three elements, that is carbon, hydrogen and oxygen. Carbohydrates are widely distributed in plant foods. They are mainly present in these foods in the form of three types of compounds called sugar, starch and a fiber. All of these carbohydrates are made up of some basic units. Fiber is a non-available carbohydrate. Fiber helps in elimination of unabsorbed food and prevention of diseases like cancer, diabetes and heart diseases. वन प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ बेसिक यूनिट इज ग्लूकोज. तो वही बताया गया है कार्बोहाइड्रेट क्या है. कार्बोहाइड्रेट के बेसिक तीन कंपोनेंट्स होते हैं, वो दिखाया गया जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. दीज आर द थ्री मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. और कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में हमें पता है कि मेजरली इट इज़ एनर्जी के लिए हमें लगता है. इट इज़ मोस्टली और एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, जो कि मेजरली हमें एनर्जी बनाने में हेल्प करती है. और उसका मेजर कंपोनेंट्स बताया गया है कि दो कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट और नॉन कार्बोहाइड्रेट. जैसे कि फाइबर के बारे में बताया गया है. फाइबर्स कैसे है? फाइबर जिसकी मेजरली फ्रूट्स में पाया जाता है, वो एलिमिनेट करने में एलिमिनेशन ऑफ अनएब्जॉर्ब फूड एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज लाइक कैंसर. तो फर्दर ये हमें गुड बॉवेल मूवमेंट मतलब फॉर एलिमिनेशन ऑफ द फीकल मैटर और स्टूल जिसे हम बोलते हैं, तो उसको रिमूव करने में हेल्प करता है. और इट ऑल्सो ऑफकोर्स काफ़ी डिजीज़ को प्रिवेंट करता है. वन प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ ग्लूकोज इज food sources. The list includes cereals, millets, roots and tubers, some fruits, sweeteners like cane sugar, jaggery and honey. Cereals and millets are major sources of carbohydrate in Indian diet. All cereals like wheat, rice and millet contains a considerable amount of starch. तो वही हमारे फूड सोर्सेज बताए गए कि कार्बोहाइड्रेट के फूड सोर्सेज कौन से हैं. जैसे कि आप सब देख सकते हैं, शुगर है, जैगरी है, हनी है, सीरियल्स एंड ऑफ कोर्स राइस तो आपको पता है कि वही है. तो दीज आर ऑल दी मेजर सोर्सेज ऑफ carbohydrate. Next is the function of carbohydrate. Some of the important function of carbohydrate are energy giving, protein sparing actions and utilization of fat. Though protein can be broken down in the body to meet the energy need, but an insufficient amount of carbohydrate in the diet will force the break the body down proteins and releasing energy. Some amount of carbohydrate is needed for proper utilization in the fat. So वही हमें बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट का मेजर फंक्शन, जैसे कि मैंने बताया, इट हैज़ मेजर फंक्शन एनर्जी गिविंग, उसका मेजर फंक्शन है. और उसके बारे में वो बताया गया है कि इट इज़ नीडेड फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फैट इन द बॉडी. फैट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए भी ज़रूरी होता है. इन सम केसेस हम मेजर तो फोकस हमें एनर्जी का पता, पर ये भी एक इसका फंक्शन है. सो यू शुड नोट दिस. Next is protein. Protein is the most abundant component in the human body. It is made up of compounds called amino acids.
which are also referred to as the building blocks of protein. The linkage of the individual amino acid together in a long chain forms the protein. The quality of food protein depends on the proportion of essential and non-essential amino acids. Those amino acids which cannot be manufactured by the body are called essential amino acids, and those which can be manufactured by the body is called non-essential amino acids. Proteins can be divided into essential and non-essential. Proteins are essential in all life forms. In animals, they help to supporting and protective structures such as cartilage, skin, nails, hairs, and muscles. They are major constituent of enzymes, antibodies, many hormones, and body fluids such as blood, milk, egg protein, etc. Proteins value for some common food items is listed below. So वही हमें पता है कि proteins क्या है. Proteins are also called as the building blocks of our body. It is the long chains of the amino acid जो कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ले लेता है और कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में. सो इट इज़ मेजरली द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड जुड़ के एक बड़ा प्रोटीन बनाते हैं जो कि इधर हमारे बॉडी का पार्ट होता है या किसी एंजाइम की तरह वो फंक्शन करता है. सो वही बताया गया है कि और मेजरली प्रोटीन्स दो क्लासेस में क्लासिफाइड है, दैट इज एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल. एसेंशियल मतलब क्या है, जो अमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते और उसे हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है. और नेक्स्टली इज दी नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्यों बोला है, क्योंकि इट कैन बी सिंथेसाइज इन आर बॉडी. सो अगर हम डाइट से ना भी ले तो भी ये कोई ज़्यादा इफेक्ट करेगा नहीं. सो हमें आगे दिया गया कि कौन से फूड आइटम्स में प्रोटीन के कौन से सोर्सेस हैं. चिकन मिल्क, एग, पनीर, आलमंड्स, दाल, सोयाबीन, पीनट्स. ये सब बेसिक फूड आइटम्स है. हमें भी पता है कि प्रोटीन मेजरली कहाँ पाया जाता है. अगर आप डाइटेटिक स्टूडेंट हो तो ऑफकोर्स आपको ये पता होना ही चाहिए कि प्रोटीन का सोर्स कौन सा है. बट स्टिल इफ़ यू वांट यू कैन नोट दिस डाटा. नेक्स्ट, फूड सोर्सेस. सम ऑफ द रिच सोर्सेस ऑफ प्रोटीन आर मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्लैश फूड्स, एग्स, नट्स, ऑयल सीड्स, कैश्यू नट्स. वही बताया गया कि कौन से फूड सोर्सेस है प्रोटीन के. फंक्शन. सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग, रेगुलेशन, प्रोटेक्शन, एक्ट एज अ कैरियर मॉलिक्यूल एंड एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल. ऑफ कोर्स इसके फंक्शंस काफ़ी है. जैसे कि मैंने बोला कि इट इज़ अ बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है. बिल्डिंग ब्लॉक्स है. रेगुलेशन, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है. कैरियर प्रोटीन की तरह एक्ट करता है. एंजाइम भी हो सकता है. तो दीज आर द मेजर फंक्शंस ऑफ प्रोटीन. नेक्स्ट इज फैट्स एंड ऑयल्स. Fats are the group of chemical compounds that contains the fatty acids. These are composed of fatty acids and glycerol. They do not form long molecular chains and they do not contribute structural strength to plants and animal tissues. Fats are smooth, greasy substances that are insoluble in water. Fat is mainly fuel source of animal or plant in which it is found in the animal that eats it. It contains about 2 raised to the power 1 by 1/4 times the calorie found in the equal dry weight of the protein or carbohydrate. Fat always have other substances associated with it in natural foods such as fat soluble vitamin A, D, E and K. So वही बताया कि फैट्स क्या है. फैट्स आर द केमिकल कंपाउंड्स जो कि मेजरली दो कंपोनेंट से बने होते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. दीज आर द टू मेजर एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द फैट्स. आपको ये पता रहना चाहिए, तो आप नोट कर सकते हैं. नेक्स्ट, फैट कैसे हमें पता है कि फैट मोस्टली स्मूथ ग्रीजी सब्सटेंस रहता है एंड इट इज़ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द आवर बॉडी. इट इज़ ऑल्सो, वो भी काफ़ी रोल प्ले करता है. इट कैन एक्ट एज अ पहला, अगर बॉडी में आपकी फैट ना रहे तो इट कैन लीड टू सेवरल डिसऑर्डर्स. और हमारे मसल्स को भी काफ़ी, बॉडी को भी जर्क्स वगैरह से प्रिवेंट करता है. अगर हम किसी कोल्ड क्लाइमेट में गए तो उससे भी प्रिवेंट करता है. तो फैट का काफ़ी रोल है. एंड उन्होंने बताया कि फैट इज़ नॉट ओनली taken through our diet but it is also responsible for some essential vitamins to be present in our body. जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के. ये जो विटामिन्स है ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इसेंशियल है. तो ये विटामिन सॉल्युबल है सिर्फ फैट में. तो ये इसलिए हमारे बॉडी के लिए फैट इंपॉर्टेंट है. यू शुड नोट दिस विच आर दी फैट्स विच आर सॉल्युबल इन विटामिन्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर फैट्स. ओके, so you should note this. Next is the vitamins. Vitamins help in protecting our body from various kind of diseases. These help in keeping our eyes, gums, bones and teeth in good shape. विटामिन जैसे कि पता है कि मेजरली हमारे बॉडी में किस लिए यूज़ होता है. इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ डिजीजेस. बीमारियों से बचाता है. हमारा आइज, बॉडी, बोन्स, टीथ सबको अच्छे हेल्थ में रखता है. नेक्स्ट इज द मिनरल्स. Minerals are used by the body to perform various functions like body building,
building strong bones, maintaining the heartbeat, making hormones. Major five minerals are calcium, phosphorus, magnesium, sodium, and potassium. Examples of mineral-rich food includes leafy vegetable, fish, beans, etc. सो मिनरल्स के बारे में बताया गया है कि मिनरल्स जैसे कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं ज़्यादातर, जैसे कि हो गया कैल्शियम, फास्फोरस, जो कि मैंने अभी रीड किया, एंड दिस आर मिनरल्स विच आर रिच इन इंक्लूड, जो कि मिनरल रिच फूड आइटम्स है वो दिए गए, जैसे कि लीफी वेजिटेबल, फिश, बीन्स, दीज आर रिच सोर्सेस ऑफ मिनरल्स। और वो हमारे बॉडी के काफ़ी फंक्शंस भी मेंटेन करता है, जैसे कि हार्ट बीट हो गया, मेकिंग हार्मोन, दीज आर द मेजर फंक्शंस ऑफ मिनरल्स। डाइटरी फाइबर्स, while dietary fibers do not provide any such nutrition to our body, but nevertheless are important component of food. They help in easy absorption of food, help in movement of bowel, and prevent constipation. It helps us, our body, get rid of the undigested food. Cereals, fruits, and vegetables are some of the roughage rich foods. So dietary fiber, जैसे roughage fibers हमें पता है कि मेजरली मैंने जैसे कि बताया आपको पहले कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आर गुड बाउल मूवमेंट, या फिर वी कैन इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से स्टूल्स, और इसका इट इज़ ऑफ कोर्स नॉट सच न्यूट्रिएंट, उसका न्यूट्रिशन कुछ नहीं है, बट इट इज़ ओनली फॉर आवर बाउल मूवमेंट। जैसे कि इन्होंने बताया कि रीड ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, और ये मेजरली कहाँ पाए जाते हैं, जैसे मैंने फ्रूट्स बोला था, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, एंड सम ऑफ द रेफेज फूड्स। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ फाइबर्स। नेक्स्ट इज वाटर. Water performs the essential function of absorbing nutrients from the food. It also helps in releasing waste from our बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। तो वाटर हमें पता है कि वाटर कितना एसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए। इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 70 to 80% ऑफ द बॉडी में हमारे पानी होता है। तो ऑफकोर्स इट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी के लिए। फूड ग्रुप्स, in the previous chapter you have studied about components of food called nutrients. They are needed by the body in adequate amounts in order to grow, reproduce, and lead normal healthy life. Each nutrient has its own functions to perform in the body, but more than one nutrient may also perform the same function. All individuals need the same nutrient for the same body functions. Variations in the diet have to be provided according to the age, sex, activity, taste, etc. So let us see how these varieties can be brought about. So वही बोल रहे हैं, फूड ग्रुप्स के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि फूड ग्रुप्स हमारे बॉडी के लिए क्यों एसेंशियल है, एंड दिस आर एडिक्वेट इन इम्पॉर्टेंट फॉर आवर गुड एंड नेचुरल हेल्थ। अपनी गुड हेल्थ रखने के लिए, नेचुरल ग्रोथ अच्छी होने के लिए, हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए हमें फूड ग्रुप्स कौन से लेने चाहिए, इनके बारे में बताया गया है। एंड उसके बारे में बताया गया कि इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन, उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, एंड उसकी डाइट प्लान कैसा है, वो सब पे डिपेंड करता है। उसका एज क्या है, एक्टिविटी क्या है, इन सब चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। ओके, सो फॉर प्लानिंग मील्स द फूड अवेलेबल कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ द फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू. दीज आर एनर्जी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड. तो यही मेजरली 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया इन्होंने. एनर्जी बिल्डिंग फूड जैसे कि हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम्स, वो इसमें आ सकते हैं. बॉडी बिल्डिंग फूड जैसे कि प्रोटीन रिच डाइट ले तो वही हो गया अपना बॉडी बिल्डिंग फूड. प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स अब रेगुलर इंटरवल्स में आप प्रॉपर विटामिन ले, मिनरल्स ले, तो वो हो गया आपका प्रोटेक्टिव फूड्स. नाउ लेट अस सी ऑल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग ग्रुप्स. तो उन्होंने एक टेबल टाइप कुछ दिया है. लेट्स सी फंक्शंस, सॉरी फ्लो चार्ट टाइप कुछ दिया है. फंक्शंस, बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन्स. तो प्रोटीन्स आर मेजरली फाउंड इन मिल्क, मीट एंड चिकन, पल्सेस, नट्स एंड ऑयल सीड्स. तो उन्होंने दोनों टाइप के मतलब बताया है कि प्रोटीन्स अगर आप नॉन वेज हो या वेजिटेरियन हो तो दोनों के लिए सोर्सेस अवेलेबल है. जैसे कि फॉर द नॉन वेज मिल्क एंड मीट, एंड वेजिटेरियंस के लिए पल्सेस अवेलेबल है. नेक्स्ट इज एनर्जी गिविंग कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. ये तो हमें पता ही है. कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्सेज कौन से, वोल ग्रेन्स हो गए, सीरियल्स हो गए, मिलेट्स हो गए, फैट्स हो गए, शुगर्स हो गए. दीज आर द रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. प्रोटेक्टिव मिनरल्स एंड विटामिन. तो मिनरल्स एंड विटामिन्स मेजरली कहाँ पाए जाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. यू शुड नोट दिस एंड यू शुड ऑल ऑफ कोर्स नो दिस. एज अ डाइटेटिक स्टूडेंट्स यू शुड बी एबल टू नो अबाउट दिस. ये बेसिक चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए. नेक्स्ट इज द ICMR. ICMR स्टैंड फॉर, आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट करें. सो ICMR स्टैंड फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. ICMR 5 फूड ग्रुप्स. तो ICMR ने क्लासीफाई किया है 5 फूड ग्रुप्स. Foods are grouped together because they provide a similar amount of key nutrients of that food groups. To meet the nutrient requirement essential for good health, you need to eat a variety of food in 5 food groups daily in the recommended amount. It is not necessary to eat
from each food group at every meal. सो ICMR ने क्लासीफाई किया फूड आइटम्स को, वही उसी के बारे में ये पैराग्राफ बोल रहा है. नेक्स्ट इज, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एंजॉय अ वेराइटी ऑफ फूड विद इन ईच of 5 food groups because different foods vary in the amount of key nutrients that is provided. Basic 5 food groups suggested by ICMR are: first, cereals, millets and pulses. दूसरा है vegetables and fruits. Third is milk and milk products, egg, meat and fishes. Fourth is oils and fats, and last is fifth, nuts and oilseeds. So इन पांचों ग्रुप में ICMR ने इन 5 ग्रुप को इंक्लूड किया है. तो इन 5 फूड ग्रुप्स में से हमें प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिससे हमारी हेल्थ कंडीशन अच्छी रहे. फूड ग्रुप्स, तो फूड ग्रुप्स के बारे में उन्होंने डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया है. लेट्स सी. सीरियल्स एंड प्रोडक्ट्स: राइस, वीट, रागी, बाजरा, मेज, राइस फ्लेक्स, राइस फ्लोर, स्प्राउटेड सीरियल्स. दिस आर इंक्लूडेड अंडर सीरियल्स. तो सीरियल्स में क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? एनर्जी देता है, प्रोटीन रिच है, इनविजिबल, it's something printing mistake, so we should consider it. Fats है, vitamins है, iron है, calcium है. So these are the nutrients which are found in cereals. ये सब तो आपको पता ही होगा. Next, pulses and legumes: bengal gram, black gram, cowpea, peas, soyabean. These are pulses and legumes. Pulses are legume majorly प्रोटीन रिच होते हैं, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि पल्सेस एंड लेग्यूम्स में मेजर सोर्सेस क्या है. नेक्स्ट इज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. ऑफ कोर्स इसका तो आपको पता ही होगा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर रिच इन प्रोटीन्स. यस. मिल्क एंड स्किन मिल्स, चीज़ एंड कर्ड, चिकन लिवर, फिश, एग एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज फ्रूट एंड वेजिटेबल्स: मैंगो, गुआवा, टोमेटोज एक्सेट्रा. दीज आर द फ्रूट्स. ये मेजरली हमारे जो भी एसेंशियल जैसे हम बोलते हैं विटामिन्स वगैरह हो गए, तो वो ये प्रोवाइड करता है. और नेक्स्टली हमने जैसे पढ़ा फाइबर्स के बारे में, जो कि हमारे बॉवेल मूवमेंट में हेल्प करता है. सो फ्रूट्स का मेजर यही रोल है, या तो वो हमको विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं, या नेक्स्टली कोई अगर बॉडी में डिफिशियंसी डिसऑर्डर रहा तो उसको क्योर करने के लिए ट्रीट किया जाता है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का भी सेम रोल है. अदर वेजिटेबल्स सेम थिंग. सो इफ़ यू वांट आई कैन रीड इट. कैरोटीनॉइड्स, विटामिन सी, राइबोफ्लाविन, folic acid, iron and fiber. These are the sources, these are the things, nutrients which are provided by the fruits. Next is fats and sugars. Fats, butter, ghee, groundnut oil, coconut oil, hydrogenated fats and cook oil. These are the sources of fat and sugar, and these are essential energy. This provides energy, essential fatty acids, fat soluble vitamins, energy and iron. बस तो इस चैप्टर में इतना ही था. I think this must be sufficient. From next video we will start from chapter 3, that is nutrients. Thanks for watching.